Hi friends, today I am going to start a very advanced technology that is known as factor analysis. So I would like to stress on factor analysis, SAM, confirmatory, exploratory factor analysis and so on. Today I'll tell you what do you mean by exploratory factor analysis. I would like to tell you CFA and SAM, structure equation modeling. Nowadays in every research we have seen that these are the latest techniques by which we are applying in our research. These are the multivariate analysis. So basically I already conveyed you what is correlation. I told you what is bivariate analysis, when there are two variables, one is dependent and one is independent. When we are talking about the dependent and independent variable, it means we are talking about the bivariate analysis. And once we are talking about the more than two variables, so we should go for a multivariate analysis. So in the multivariate analysis we will find the relationship between more than two. Or when we are talking about the independent and dependent means bivariate analysis, it is a special form of multivariate analysis. So basically I already completed what is correlation, what is regression, what is multiple regression. These concepts I already finished. Today I am going to take a new chapter, that is factor analysis. I would like to tell you factor analysis. I would like to tell you the different types of there are two types of factor analysis. We use exploratory analysis and confirmatory analysis. And I've seen nowadays researchers, when they are doing their PhD, they are highly confused about the confirmatory and SAM. What they are thinking confirmatory factor analysis and the second one SAM, structure equation modeling. Both are the same thing. But no, there is a damn difference between these two. One is based on the dependent variables and one is based on the independent variable. So I would like to stress today my session is all about what is the similarities of factor analysis and confirmatory analysis in SAM, and what are the dissimilarities about these two concepts. So my focus on that also, that issue also. So I am showing you the slide and then I start my lecture. I am showing you there are two types of techniques. What are the variables, what are the things we are covering in the factor analysis or the cluster analysis or the you can say that multi-dimensional scaling analysis, and in SAM what we cover. So I am showing you the slide first. See, this is the basically this is a family tree of factor analysis in SAM. It is visible to everybody. सबको दिखाई दे रहा है ये? Yes ma'am. देखिए, it's a family tree of factor analysis in SAM. देखिए basically होता क्या है? Once we are talking about, देखिए, any technique in which we use the relationship between multivariate analysis, we call it multivariate analysis. जहाँ पे we divide into two groups. In the multivariate analysis, we divide our multivariate analysis into two groups. One is analysis of dependence and one is analysis of independence. One is analysis of dependence and one is analysis of independence. So why do we say the analysis of dependence? Because we are assuming that one of the variable is dependent and one of the variable is independent. For example, sales and advertisement. So we are showing the relationship between these two, dependent and independent. It is a technique of dependent. तो sales यहाँ पर क्या है? Dependent variable, और advertising क्या है? Independent variable. Like suppose if we are investing more and more in the advertising, so sales will be boosted up. So sales is a dependent variable and your advertising is a independent variable. It means we are investing more and more, and once we are going by the effective advertising, so our sales will be boost up. It could be boost up. We are assuming that. So it is a technique of a dependence. And when we are talking about the dependence, two things
come into my mind. Two broad things come into my mind. One is multiple regression and one is structure equation modeling. One is multiple regression and second is SAM, structure equation modeling. Why we are talking about the dependent variables. And second is analysis of interdependence variable. So in the interdependence variable, what we are thinking, we are assuming that independent, the variables all assume that all are independent of each other, and in which we use analysis like such as trust analysis, cluster analysis, factor analysis. So we call it EFA, and CFA is a part of factor analysis and it comes in the family of factor analysis. While we are comparing more than two variables or the two groups, so we call it EFA and CFA. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis, and we call it brothers and sisters also because they belongs to the same family. And once we are talking about once we are talking about the SAM, then we call it correlation. We are going for the correlation analysis, we are going for the cause and effect relationship. In SAM we take all the latent variable, but in regression we do not have the latent variable. What is the difference between the regression and the SAM? In the SAM we are taking the latent variables, and in the regression, in the simple regression, we don't take the latent variables. Latent means which is hidden, which is indirectly measurable. So this is a family tree of SAM and factor analysis we call it. Analysis of independent variable which are interdependent variable, which are assumed to be interdependent of each other. And first is dependent, where one is dependent and one is independent. So when we talk about the correlation, we talk about the cause and effect relationship, we talk about the alpha and beta relationship, when we talk about the path analysis, we are talking about the SAM. It comes in the path analysis, correlation analysis or multiple regression. These all comes in the family of structure equation modeling. So we call it SAM. So first I would like to analysis about the factor analysis, where we are going for the analysis of interdependent variables. So factor analysis, in factor analysis we use the factor scale also, or multi scales item also, as I already told you. What is factor analysis? Factor analysis basically, my dear, it is a multivariative statistical technique in which there are no distinction between the dependent and interdependent variable. So basically it is when we have a huge data, it is basically a data reduction technique. And suppose data reduction technique, why we use this technique? Because it simplifies the decision making. So if we are puzzled in the data, if the data is so large, suppose you people are getting me? Hello? Yes, ma'am. Okay. So when the data is also very large and we are puzzled, so we have to simplify our decision making. How we simplify our decision making? By the data reduction technique. So in the factor analysis, all the variable under investigation are analysis together and extract the underlying factors. It is it is a very useful technique to reduce a large number of variables, resulting into data complexities to a few manageable factors, we call it. And the factors which are not explaining the variations, then we have to cut off them. So a factor analysis, we call it, the factor is a linear combination of variables, we call it, and it is a construct that is not directly observable, but that needs to be inferred from the input variable. We show the application in the regression analysis also as the factor scores. When we use the independent variables in the regression analysis, it helps to solve our multi-clonatory problem also. Like suppose once we go for a regression model, मैंने आपको बताया था ना कि 2 या 2 से ज़्यादा,
जब हम दो आपस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप तय करते हैं तो दैट इज द रिग्रेशन मॉडल. And when independent variables are so highly correlated, so it becomes difficult to separate out the influence of each independent on the dependent variable. So that particular time, it is a multi-coronary problem will be arise. So you know, in the factor analysis, we take the factor score could be used in the multivariative techniques like discriminant analysis, cluster, multi-dimensional scaling, and trust analysis also, and so on. तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारा जो फैक्टर एनालिसिस होता है, बेसिकली जब हम फैक्टर एनालिसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेटा रिडक्शन टेक्निक की. तो हम बात करते हैं ये देखने के लिए कि जो भी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी रिग्रेशन में जो भी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं वो ऐसे बने कि जिनमें बहुत ज़्यादा आपस में कोरिलेशन भी हो और बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड ना हो. मतलब आइडेंटिफिएबल ना हो. आइडेंटिकल अगर एक जैसे हो जाएंगे दोनों और बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड हो जाएंगे तो हमें ग्रुप डायमेंशंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, इन द फैक्टर एनालिसिस वी टेक दोज फैक्टर्स यूजुअली द लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, लाइक एटीट्यूड, satisfaction, or any kind of index, happiness, anger. Suppose I would like to express my feelings about the one teacher's satisfaction. So if somebody asks you ki how much you satisfied from your that particular teacher, so once I am rating my satisfaction about that particular teacher following a Likert scale, any kind of multiple scale, maybe it's a 5 rating scale, maybe it's a 7 rating scale, or maybe it's a 10-point Likert scale. So what I am doing is I am sharing my feelings. So it can't be measurable. So it is a latent variable. We call it is a latent variable. And see, in the factor analysis, it could be develop a concise multiple item scales for measuring various contrasts. Suppose there are so many contracts, so we have to use the factor analysis to develop concise multiple item scales. For example, if I want to prepare the multiple item scale for measuring the job satisfaction, है ना, तो I would like to go for a particular number of statements. I make some kind of statement, say as 100 or 200 about my own थिंकिंग कि मैं क्या समझ रही हूँ कि जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए या सेटिस्फेक्शन टीचर की सेटिस्फेक्शन को मेज़र करने के लिए हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आई नीडेड, एंड आई हैव टू वर्क ऑन दोज फैक्टर्स. नाउ वी वांट टू गो फॉर अ कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट आइटम स्केल. मतलब जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं उनका मैं एक आइटम स्केल बनाऊंगी टू मेजर दी सेटिस्फेक्शन लेवल, I am satisfied or not. So what could be done? It is separate 5 item scales, it may be the 10 item scales, and I am having the highest factor loading. That's why I have to go for a 5 rating scale, 15 item rating. It depends upon my questionnaire. जो भी मैंने क्वेश्चनर मिलाया है, जो भी मैंने क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उसके हिसाब से मैं अपना आइटम स्केल बनाऊंगी. And in the factor analysis, we divide our factor analysis into 2 FARA. One is EFA and one is CFA. I already told you EFA and CFA. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Both are the brother and sisters. They comes in the one family. Once we are talking about the interdependence of variables, so we talk about the factor analysis. And once we are talking about the dependence, so we go for a causal relationship between cause and effect relationship. Once we go for a correlation, then we go for a structure equation modeling. So these are the different issues. So in the factor analysis, we require a metric data. We already discussed about the metric and non-metric data, but you should be very strict about that. In the factor analysis, once we going to start a factor analysis, it requires a metric data. What it means? It means the data should be either interval or ratio scale in nature. For example, ordinal scale. Ordinal scale means Likert scale, or ratio means income, sales, cost, market share, and like height, weight, age, marks. ठीक है. So the variables for the factor analysis are gathered through exploratory research, which is carried out by the focus, discuss, interview. अगर आप एक बात करें कि focus
डिस्कस इंटरव्यू में भी हम इसको फैक्टर एनालिसिस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं कि हम मतलब और देखिए once we are talking about the factor analysis, basically it is based on the focus interview based techniques and it is basically unstructured interview with the knowledgeable people and it be based on the judgment of the researcher. We call it informal interview also, we call it literature survey and analysis of case study etc. These are comes in factor analysis. But once we are taking the variables which are used in the factor analysis, first we find out the variables and then we have to be standardized to those variables. The basic condition for applying the factor analysis is that variables should be highly correlated, not very much highly correlated, means multi-corollary problem नहीं आनी चाहिए, दो चीज़ें एक समान नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी एक वेरिएबल में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर कोरिलेटेड विच ईच अदर, वो आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए. एंड जनरली इट इज़ हेल्ड विद द सैम्पल, स्मॉल सैम्पल ऑफ द रिस्पोंडेंट पॉपुलेशन इन अ सर्वे रिसर्च, और इसमें हम कोई भी लिकट स्केल यूज़ कर सकते हैं. और देखिए अर्लियर आई ऑलरेडी स्पेसिफाइड यू कि साइज ऑफ द सैम्पल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, it is again a one condition of the factor analysis कि the size of the sample respondent should be at least 5 times more than number of variables. Means number of variables means number of statements. Means suppose you are making 100, suppose you are making 25 statements or 25 questions you made. So we call it 25 variables or 25 statements. So what would be your sample size? It would be more than 125. ठीक है. एंड द आइडल रेशियो मे बी मैक्सिमम अप टू 10 टाइम्स, बट 5 टाइम्स आपको अपना सैम्पल साइज अपने स्टेटमेंट से ज़्यादा रखना ही पड़ेगा. ये एक कंडीशन है, अदरवाइज द फैक्टर एनालिसिस कैन नॉट बी रन बाय यू, अदरवाइज फैक्टर एनालिसिस जो है नहीं चलेगा. और देखिए फैक्टर एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल ये भी होता है कि बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ द फैक्टर एनालिसिस कि द इनिशियल सेट ऑफ द वेरिएबल शुड बी कोरिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है. एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स आर स्मॉलर देन दिस फैक्टर एनालिसिस मे बी द एप्रोप्रिएट टेक्निक. कोरिलेशन मैट्रिक्स जो होती है, कोरिलेशन मैट्रिक्स को हम फैक्टर एनालिसिस से पहले कंप्यूट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिकल उसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं है, और अगर उसकी स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होती है देन वी प्रोसीड फर्दर, तब हम आगे चलते हैं. और देखिए फैक्टर एनालिसिस का मेन पर्पस होता है टू समराइज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंडक्टेड विच कंटेन डेटा बाय द फ्यूअर नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो दो तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर टिपिकली हाईलाइटेड इन द फैक्टर एनालिसिस. वन इज यूनिक वेरिएबल्स एंड सेकेंड वन इज कॉमन वेरिएबल्स. और यूनिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? यूनिक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आइगन वैल्यू आर मोर देन 1 एंड कॉमन which value is less than 1, we reject them. So in the factor analysis we require the statements and the statement should be standardized to create a factor analysis. हमें factor analysis करते समय ये ध्यान रखना होगा कि हमारे हमने जो भी variables बनाए हैं वो आपस में correlated होने चाहिए, और correlation के साथ साथ correlation matrix जो है उनकी statistical significance उनकी होनी चाहिए. Then we carried the factor analysis. दूसरी चीज़ ये है, another condition which required to fulfill is the value of Kayser-Meyer-Olgin statistics, which takes a value between 0 to 1. For the application of KMO, statistics should be greater than 0.7, and if it is 0.6, it can be desirable. Huh? Yes. एक्चुअली ना ये इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देखती हूँ, अगर हो जाएगी तो आई शो यू. राइट, ठीक है प्रीति? हाँ देखिए इसमें KMO टेस्ट, हाँ KMO टेस्ट करते हैं और KMO स्टैटिस्टिक शुड बी ग्रेटर देन 0.7. अगर देखिए KMO जो सैंपल एडिक्वेसी, सबसे पहले जो हमने सैंपल लिया है वो एडिकेट है कि नहीं है, हम उस पर फैक्टर एनालिसिस रन कर सकते हैं कि नहीं रन कर सकते हैं, वो देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे KMO की वैल्यू क्या आती है. इसको कहते हैं केसर मेयर ऑल्गिन टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट.
अगर हमारी वैल्यू KMO की वैल्यू 0.7 आती है, 0.7, इट मीन्स अवर स्टैटिस्टिकल व्हाट सैंपल वी हैव टेकन इट इज़ एडिक्वेट। अगर हमारी वैल्यू 0.6 आती है तो वो भी डिज़ायरेबल है। लेकिन आजकल हम लोग KMO की वैल्यू मानते हैं कि हाउ मच वेरिएंस आर अवेलेबल इन अवर वेरिएंसेस, कितने हैं। तो जो एक्सीलेंट और अच्छा स्कोर माना जाता है वो 0.7 से ज़्यादा माना जाता है। इट वुड बी 0.8, 0.8, इट वुड बी 0.9, इट वुड बी 0.7 और मोर देन दैट। लेकिन अगर 0.6 होता है तो वो भी डिज़ायरेबल है। अगर आपका डेटा अच्छा है, अगर आपने अच्छा काम किया है और आपको सारे टेस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो KMO की वैल्यू अगर 0.6 से ज़्यादा आ रही है तो वो भी डिज़ायरेबल है टेक्निकली। बट कोशिश ये करें कि आप उस डेटा को अपना बेस बनाएं जिसकी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा आ रही है, राइट? हाँ, और देखिए फिर हम ना कोरिलेशन मैट्रिक्स चेक करते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स चेक करने के लिए कोरिलेशन मैट्रिक्स इनटू कंसीडर हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, हम KMO की फुल फॉर्म है केसर मेयर ओल्किन, ठीक है? KMO दैट इज KMO स्टैटिस्टिक्स, राइट? ओके, सो देखिए वंस वी हैव टू चेक द रिलेशनशिप अबाउट द वेरिएबल्स और रिलेशनशिप अबाउट द वेरिएबल्स, आवर फैक्ट एनालिसिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज EFA एंड वन इज CFA। देखिए EFA मैंने आपको बताया ही है, जब हम अनसर्टेन होते हैं, जब सिर्फ हम एक डेटा पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने फैक्टर्स आएंगे, हाउ मेनी फैक्टर एग्जिस्ट अमंग अ सेट ऑफ वेरिएबल, मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, वी आर गोइंग फॉर द पैटर्न, वी आर आइडेंटिफाई कि कुछ नंबर लेके हम उसको क्वांटिटेटिवली वेरीफाई कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि पैटर्न क्या आएगा। वी हैव जस्ट नथिंग, आई जस्ट टू नो अबाउट नथिंग, मतलब कुछ भी आ सकता है, सो वी कॉल इट एक्सप्लोरेटरी। मैंने आपको बताया ना, जब हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम कोई पैटर्न बना रहे हैं, हमें अभी कुछ नहीं पता है, हम एक जनरल एक रॉ डेटा पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है हमारी रिसर्च अप्रोच इन द फैक्ट एनालिसिस, वंस वी आर डिवाइडिंग आवर एनालिसिस इनटू टू पार्ट्स, इन द एक्सप्लोरेटरी फैक्ट एनालिसिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आवर रिसर्च अप्रोच इज अनस्ट्रक्चर्ड। अभी हमें कुछ भी होता नहीं है, हम सिर्फ एक पैटर्न मेक कर रहे हैं कि पैटर्न इट शुड बी एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है, कोई भी पैटर्न आ सकता है, ठीक है? एंड इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, इट शुड बी बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव, इट शुड बी अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ भी हो सकता है। और उसका भाई, इसको मान लो हमने बहन मान लिया एक्सप्लोरेटरी को, तो इसका भाई क्या होगा, कन्फर्मेटरी। जब हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया, एक पैटर्न बना दिया, अब हम उसको चेक करेंगे कि हमने जो माना था, बेसिकली हम क्या करते हैं थ्योरेटिकल, अगर हमने कोई हाइपोथेसिस बेस्ड करी है, we made any kind of hypothesis based on the theoretical structure, so we have to prove our hypothesis with the use of confirmatory factor analysis. Like when I have a strong theoretical expectations about the factor structure, कि number of factors या number of variables which are related to each other, before performing the analysis I am sure that what I am assessed it is already happened. तो हम कोई भी परफॉर्म करने से पहले, कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले, जब हम एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बना लेते हैं, एक अच्छा फैक्टर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि हम थ्योरेटिकल हमने जो एक बेस बनाया था, जो एजम्पशंस बनाई थी, क्या वो फिट है एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो बेसिकली कंफर्मेटरी एनालिसिस क्या होगी, पैटर्न मैचिंग। सो मीन्स व्हाट pattern we made, first we identify the pattern and then we make the pattern, and once we made the pattern then we have to match the pattern. Suppose when I have idea that hypothesis जो मेरी थी, by the data I am confirming that hypothesis, I am matching my idea with the data, so it means what, I am confirming that, ठीक है? I am writing that कि whatever I done it is okay, it is as per the structured theoretical aspects what I already assumed, right? That is confirmatory factor analysis. Got the point? Yes. हाँ, तो देखिए इसमें हम करते क्या है, फैक्ट एनालिसिस में बेसिकली हमारा काम क्या होता है
we have to go for any assumptions, we have to go for any kind of hypothesis making, और हम कोई भी hypothesis जो बनाते हैं उसका strong theoretical structure होता है और उससे हम उसको confirm करते हैं. We are confirming our hypothesis of structure and exploring data pattern in EFA basically, है ना. तो तभी हम इसको कहते हैं कि फैक्ट एनालिसिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ डेटा रिडक्शन टेक्निक एंड इट इज़ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग विच वेरिएबल्स अमंग अ सेट ऑफ डेटा माइट बी इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो इट विल बी वेरी ईजियर टू कन्फर्म अवर डिसीजन मेकिंग. तो उसमें क्या होता है, हम इजीली अपनी डिसीजन मेकिंग को कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम उस मॉडल फिट, उसको हम एक मॉडल फिट से चेक कर लेते हैं कि जो हमने मॉडल बनाया है वो मॉडल फिट सही है या नहीं है. ठीक है. सपोज देखिए हमने कोई भी फैक्टर्स लिए, हमने उनको रन किया. जब हमने वो फैक्टर्स रन किए तो वी गॉट द KMO वैल्यू मोर देन 0.7. इट मीन्स वॉट एवर द डेटा वी हैव यूज्ड दैट इज़ ओके. हमने उसको ओके मान लिया और फिर हम उसे कन्फर्मेटरी से टेस्ट कर रहे हैं. और जब हम उसे कन्फर्मेटरी से टेस्ट कर रहे हैं सो वी हैव टू फुलफिल आवर मॉडल फिट क्राइटेरिया ऑल्सो. जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो मॉडल फिट है वो सही है या नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, उससे क्या करते हैं, हम उसको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं उसकी, और अपने मॉडल फिट को चेक करते हैं कि जो हमने अपना मॉडल फिट बनाया है, जो हमारा मॉडल बनाया है वो एज़ पर द क्राइटेरिया, एज़ पर द स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसके लिए देखिए कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं, लाइक गुडनेस फिट इंडेक्स कहते हैं. ठीक है. AV होता है एवरेज वेरिएंस एग्जैक्टेड, MSV मैक्सिमम शेयर्ड वेरिएंस, CR, CFI, RMSEA और CMIN/DF. ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं. NFI, TLFI, EJFI ये हम चेक करते हैं. इसको कहते हैं मॉडल फिट. जब हम कोई मॉडल बना लेते हैं, जब हम कोई मॉडल बना लेते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि इसका असर इस पर इतना है, हमने ये मान के चला कि भाई अगर बच्चा सेटिस्फाइड है, अगर बच्चा सेटिस्फाइड है और टीचर से सेटिस्फाइड है बच्चा, तो टीचर, एक बच्चा सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमें अब इस एजम्पशन को प्रूव करना है. तो हमने थ्योरेटिकल एक बैकग्राउंड, ये जितने भी हमारे पेपर्स थे हमने उसको एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देके हाइपोथेसिस को बना दिया कि स्टूडेंट फीडबैक, द पॉजिटिव स्टूडेंट फीडबैक आल्सो रिलेटेड टू द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ द फैकल्टीज विच आर टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी. हमने मान लो ये हाइपोथेसिस बनाई है, तो ये जो हमने मॉडल बनाया है, जो हमने ये एक वेरिएबल लिया है, ये सही है नहीं है, इसको हम चेक करेंगे बाय द मॉडल फिट क्राइटेरिया, बाय द मॉडल फिट क्राइटेरिया. और मॉडल फिट क्राइटेरिया ही हमें बताएगा कि ये जो रेंज जो हमने एज्यूम करी है, जो हमने रेंज मानी है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, व्हाट वेरिएबल्स, लाइक सपोज you have to run the factor analysis. So suppose you selected the 100 questions suppose, तो आपने 100 questions बना लिए suppose factor analysis के, और इसको हम बोलेंगे 100 questions को हम बोलेंगे 100 statements. हम क्या बोलेंगे इसको, 100 statements. जो हमारे questions हैं वो statements कहलाएंगे. ठीक है. और जब हम इन statements को रन करेंगे factor analysis में, तो जो देखिए हमने एक चीज़ मोटिवेशन लेके चले हैं, अब हम एक लेके चले हैं वर्क एनवायरनमेंट लेके चले हैं, एक लेके चले हैं स्टूडेंट फीडबैक. मतलब हम क्वालिटी एजुकेशन, हम ये मान रहे हैं कि अगर टीचर पॉजिटिव है, अगर टीचर सेटिस्फाइड है किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाता है. सपोज ये मेरा मॉडल है, इस मॉडल को प्रूव करने के लिए कुछ ड्राइवर्स लिए हैं. ड्राइवर्स इन द सेंस जो कि इफेक्ट कर रहे हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को. और जॉब सेटिस्फेक्शन है, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन प्रैक्टिसेस अच्छी हैं टीचर्स की, तो वो इफेक्ट कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन को. तो ये मैंने एक मॉडल बना लिया. ऑल पीपल आर गेटिंग मी? Yes. हाँ. देखिए प्रीति, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गो फॉर अ मॉडल. फैक्ट एनालिसिस की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वी टेक द क्वेश्चंस. पहले हमें सबसे पहले उन क्वेश्चंस को रन करना होगा
और उन क्वेश्चंस को रन करने से पहले हमें ये एक थिंकिंग प्रोसेस बनाना होगा, एक हाइपोथेसिस बिल्ड करनी होगी कि मैंने ये माना कि हाँ, अगर स्टूडेंट का फीडबैक पॉजिटिव है तो वह स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा मैंने बनाया कि अगर हेल्दी और कंजेनल एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी का तो वो स्टूडेंट जो टीचर सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाता है। तीसरा मैंने बनाया कि कलीग बिहेवियर जो है, आपस का जो बिहेवियर है वो टीचर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। चौथा मैंने ड्राइवर बनाया कि जो एचओडी बिहेवियर है वो टीचर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। और अगर टीचर सेटिस्फेक्शन प्रैक्टिसेस अच्छी हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाता है। तो अब मैंने 3 चीज़ें ले ली अपने मॉडल में। मेरी 3 चीज़ें हैं, एक ड्राइवर्स, एक जॉब सेटिस्फेक्शन प्रैक्टिसेस और एक क्वालिटी एजुकेशन पैरामीटर, आउटकम बेस्ड। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, तो कॉज तो क्या हो गया कि क्या चीज़ें हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है, घटाती है, और उसका इफेक्ट क्या होता है जब हम आउटकम देखेंगे। वी आर गोइंग फॉर आउटकम बेस्ड एक्सरसाइजेस। तो आउटकम क्या होगा हमारा क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन की मतलब टीचर सेटिस्फाइड हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेपर पब्लिश कर रहे हैं, टीचर सेटिस्फाइड है तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी आगे A ग्रेड बढ़ रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर A रेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है। सो इट इज़ आउटकम। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, भाई जब ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। और स्टैंडर्डाइज हम जा रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन? इट इज़ आउटकम बेस्ड। तो ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। हमने एक मॉडल बना लिया, इस मॉडल को हमने बीच में लिया ड्राइवर्स जो इफेक्ट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को, और जॉब सेटिस्फेक्शन को हमने मीडियोकर ले लिया। ठीक है, कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो प्रैक्टिसेस हैं वो उनका इफेक्ट क्या पड़ता है कि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है तो इफेक्ट ये होगा कि आउटकम बहुत पॉजिटिव होगा, या जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत हल्का है तो आउटकम बहुत नेगेटिव होगा। अब हम ये जो पूरा हमने मॉडल बनाया है, इस मॉडल को हम चेक करेंगे, मतलब हमने जो स्टेटमेंट्स बनाए हैं तो हम ये चेक करेंगे, जैसे 100 हमने स्टेटमेंट्स बनानी है, 100 क्वेश्चंस बनाए हैं, तो हम चेक करेंगे अगर हमारी मोर देन 70 स्टेटमेंट्स की वैल्यू, मोर देन 70 स्टेटमेंट्स से 70 क्वेश्चंस की वैल्यू स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट मोर देन 0.70 आता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि it may be inferred that all the items are duly contribute to the measurement of each of the construct under the study. It means my data is viable, my data is valid, I can go for this particular model, I can proceed this particular model, right? Yes. हाँ, नेहा आपको समझ में आ रहा है? नेहा, हेलो, kindly tell me, you people are very very raw in giving the feedback. At least आप feedback देते रहा कीजिए साथ साथ में my dear, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, चलिए अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जब हम एक मॉडल फिट लेते हैं, हम कोई भी मॉडल फिट लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी हैव टू चेक बाय द एक्सेप्टेबल वैल्यूज। मॉडल फिट क्राइटेरिया हम उसको इंटरप्रेट करते हैं अपने मॉडल फिट क्राइटेरिया से, और उनकी एक एक्सेप्टेबल रेंज होती है। इफ दे लाइज बिटवीन द एक्सेप्टेबल रेंज, तो हम ये मान के चलेंगे जो कि मॉडल फिट हमारा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर वो वैल्यूज इधर उधर आ रही हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने जो एज्यूम किया है, जो हमारा मॉडल फिट है वो ठीक नहीं है, ठीक है, राइट। तो देखिए बेसिकली मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि हम सैम और CFA, मैंने आपको बताया CFA और EFA तो फैक्ट एनालिसिस फैमिली से है, और जब हम मल्टीपल रिग्रेशन, पाथ एनालिसिस और आपका जो क्या कहते हैं बाइवेरिएटिव या कोरिलेशन की बात करते हैं, तो हम किस बात की बात करते हैं, सैम की बात करते हैं।
स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग इज नथिंग, इट इज बेस्ड ऑन दी मल्टीपल रिग्रेशन, जहाँ पे हम लेटेंट वेरिएबल की बात करते हैं। हम सिंपल रिग्रेशन में लेटेंट वेरिएबल्स नहीं होते हैं, बट हम जब मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल की बात करते हैं, तब हम किसकी बात करते हैं? लेटेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो बेसिकली सैम क्या है? ये ऐसा मॉडल है जो कंबाइन करता है किसको? विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैज बीन मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड अमंग द वेरिएबल्स एग्जामिन्ड। अब एक मेजरमेंट वेरिएबल होता है, मेजरमेंट मॉडल होता है, एक स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल होता है। तो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, और जो मेजरमेंट मॉडल है वो क्या बताता है? CFA कंफर्म करता है कि जो हमने स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, जो हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, वो जो भी हमने एक रिलेशनशिप बनाई है लेटेंट वेरिएबल ऑब्जर्व वेरिएबल्स के बीच में, वो कंफर्म्ड है। उसकी वैलिडिटी हम उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं? थ्रू द कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, जो भाई लेटेंट वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, तो हम उनकी रिलेशनशिप को लेटेंट और ऑब्जर्व को कैसे चेक करेंगे? थ्रू कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस को बेसिकली हम मेजरमेंट मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट मॉडल भी बोलते हैं। और इसकी जो हम अपने वेरिएबल्स की जो ये चेक करते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी चेक करते हैं, वो कैसे चेक करते हैं? थ्रू कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस बाय द स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ, और देखिए इसमें हमें क्या करना होता है? हमें आउटकम बेस्ड वेरिएबल्स लेने होते हैं, हमें प्रिडिक्टर वेरिएबल्स लेने होते हैं, भाई हमें लेटेंट वेरिएबल्स लेने होते हैं। लेटेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? विच आर नॉट डायरेक्टली एग्जैक्टली मेजर्ड, राइट? दे हैव अ मेजरमेंट एरर्स एसोसिएटेड विद देम। मैंने बताया ना, जैसे एटीट्यूड हो गया, जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, दीज ऑल आर व्हाट? These are the latent variables और hypothetical variables we call it, right? और exogenous कौन से होते हैं? Exogenous variables कौन से होते हैं? Exogenous, Outside से हाँ, इनको हम इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं। देखिए एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस क्या होते हैं? which is equivalent of a dependent variable which is determined by the construct or the variables। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये कहें कि अगर we are saying कि what is the difference between the EFA and CFA, so we call it EFA is a based on the raw data, it is a unstructured research approach, and confirmatory is a confirmatory factor structure exacted in the EFA, and it is a technique to estimate and evaluate the measurement model। ठीक है, हम कंफर्म कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शंस व्हाट विच आर लोडेड, दे आर एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द theoretical expectations, or they are according to the hypothesis which is made by the strong theoretical background। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो देखिए बेसिकली होता क्या है, हम इनको मॉडल फिट को हम किस तरीके से करते हैं? मॉडल फिट को देखने के लिए हमको पहले क्या करना होता है? हमको एक मॉडल फिट की वैल्यूज़ को देखना पड़ता है, और उन वैल्यूज़ को चेक करके हम बोल सकते हैं कि हमारा मॉडल सही है, जो हमने एक्चुअली कंफर्म किया है, जो हमने एक चीज़ ली है वो सही है कि नहीं है। उसको हम चेक करने के लिए बेसिकली हम एक स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हैं, मॉडल फिट कहते हैं, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स में गुडनेस और बैडनेस ऑफ फिट इंडिसाइजेस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप मॉडल फिट में हाँ बोले। बट हमने उसका किया है, हमारा वो डाटा मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, इट मींस EFA
देखिए प्रीति, आप नेहा है कि प्रीति है, कौन बोल रही है? प्रीति बोल रही है ना? हाँ प्रीति, देखो पहले मैंने माना था कि ये ड्राइवर्स हैं, इन्हें मैंने ड्राइवर माना है, इन्हें मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन प्रैक्टिसेस के वेरिएबल माना है और इन्हें मैंने आउटकम्स माना है, ठीक है। अब मैं जब अपना रॉ डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोसेस करूंगी फैक्टर एनालिसिस में, तो वो जो वेरिएबल जिसके क्लोज होगा वो उस कैटेगरी में आ जाएगा, राइट? जब वो आ जाएगा, अब आपने उनको, यू हैव टू नेम देम, थियोरेटिकली आप उनको नेम देंगे। जैसे आपने 3 ड्राइवर्स को ABC नाम दे दिया और आपने जॉब सेटिस्फेक्शन फैक्टर को D नाम दे दिया और जितनी भी आउटकम्स हैं उनको आपने E नाम दे दिया। अब आप उसको कंफर्म करेंगी, कंफर्मेटरी। जब आप कंफर्मेटरी करेंगी तो इसका मतलब है आप मेजरमेंट मॉडल यूज कर रही हैं, ठीक है। आप मेजर कर रही हैं कि हाँ ये जो ड्राइवर्स हैं इनका असर पड़ता है। अगर ड्राइवर्स पॉजिटिव होंगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और अगर जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो आउटकम्स भी पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। हाँ, तो पहले हम बात कर रहे हैं, अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो हमने जो ये मॉडल बनाया है, ये हमारा मॉडल फिट है या नहीं है, इसको हम जब रन करेंगे बाय कंफर्मेटरी फैक्टर से, सो वी हैव टू चेक कि हमारा स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने बताया ना, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम अपना स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट देखते हैं जिसकी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, और जब उसकी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा होगी, इट मीन्स क्या है कि जो भी हमने मॉडल माना था वो हमारा मॉडल फिट ठीक है, वो मेजरमेंट मॉडल हमारा ठीक है। हमने उसे कंफर्म कर दिया कि हाँ ये ड्राइवर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करते हैं, और जॉब सेटिस्फेक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो ये, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन पॉजिटिव है तो उसकी आउटकम्स भी पॉजिटिव होंगी, राइट? तो देखिए बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू टेक दिस कोर्स, वी हैव टू टेक द फॉलोइंग मॉडल फिट स्टैटिस्टिक्स। हमको CFI, GFI, AGFI, NFI, CMINDF, RM, SEA, ये सारी वैल्यूज़ चेक करनी होती हैं। ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये मॉडल फिट बताती हैं, ये क्राइटेरिया फॉर मॉडल फिट है। ये जब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट फिट इंडिसाइजेस कहते हैं इन्हें, हम इन्हें दोनों इन वैल्यूज़ को हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम इनको निकालते हैं मेजरमेंट, और दोनों देखते हैं, दोनों ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट देखते हैं, बैडनेस ऑफ फिट देखते हैं, बोथ मेजरमेंट मॉडल में भी और स्ट्रक्चर मॉडल में भी। और ये बताती हैं कि ये मॉडल हमारा फिट है, बेटर है कि नहीं है, और हम इस पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए कंपैरेटिव फिट इंडेक्स, हाँ जी मैम, ये टेस्ट आपको बता रहे हैं, ये टेस्ट ओनली एनालिसिस में यूज करेंगे ना? नहीं, जब आप सैम यूज कर रहे हैं, अगर आपको सैम यूज करना है या मेजरमेंट मॉडल यूज करना है, तो आप मॉडल फिट क्राइटेरिया देखेंगे ना, मॉडल फिट क्राइटेरिया। अगर आप इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट टेक्निक्स यूज कर रही हैं ना, मैंने आपको आप दोनों मल्टीवेरिएटिव टेक्निक की दोनों बताई, डिपेंडेंट एनालिसिस भी बताइए, इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी बताइए, ठीक है ना? हाँ, तो भाई जब हम डिपेंडेंट टेक्निक यूज करते हैं तो हम दूसरा डेटा यूज करते हैं, जब इंडिपेंडेंट टेक्निक्स यूज करते हैं तो दूसरा डेटा यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हम क्या चीज़ लेके चल रहे हैं, हम अपने मॉडल को, या हम इंडिपेंडेंस टेक्निक यूज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट मल्टीवेरिएटिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, या डिपेंडेंट मल्टीवेरिएटिव टेक्निक कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। और जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं हम उसी के हिसाब से अपनी एनालिसिस को लगाएंगे। जैसे हम मान लो एनालिसिस ऑफ डिपेंडेंस हमने चेक करनी है, हमें 2 ही चीज़ों के बीच में एनालिसिस करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। तो ये टेक्निक क्या है डिपेंडेंस की, इसमें हम क्या लगाएंगे, मल्टीपल रिग्रेशन और सैम, ठीक है। अगर हमें एनालिसिस ऑफ डिपेंडेंस चेक करना है तो हम कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, सैम यूज करेंगे। बेसिकली ये एक फैमिली है। और अगर हमें एनालिसिस ऑफ इंटरडिपेंडेंस करना है कि वेरिएबल्स
which we are assuming that they all are independent of each other. ठीक है, तो we have to go for a factor analysis, we have to go for a cluster analysis, we have to go for a confirmatory factor analysis. ठीक है, गॉट द पॉइंट. तो हम कौन सी रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, हमारा बेस क्या है, हम कौन से डेटा पे मेजरमेंट करना चाहते हैं, दीज ऑल डिपेंड्स ऑन दी आवर मॉडल या आवर रिसर्च प्रॉब्लम. तो देखिए बेसिकली मॉडल फिट में हम क्या क्या देखते हैं, हम मॉडल फिट में देखते हैं CFI क्या है हमारा. देखिए इनको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, द CFI नहीं, ये स्लाइड ना एक्चुअली मैंने एक बस एक मल्टीवेरिएटिव का बनाया है. स्लाइड ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, स्लाइड कर्सर नहीं हो पा रही है, सो दैट इज़ द थिंग. डोंट वरी, आई एम गिविंग यू वर्बली, मैं आपको बता दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए CFI का मतलब होता है, हाँ हाँ जी क्या बोल रहे हैं, I will send you the material. I will send you the PDF as I am sending earlier. I already send you all the notes, है ना. So I send this also. But you should be, हाँ. So once we are checking our criteria of the model fit, we are taking the comparative fit index. Comparative fit index means CFI. इसकी रेंज 0.7 से लेकर 0.9 तक होनी चाहिए. CFI मीन्स कंपैरेटिव फिट इंडेक्स. इसकी जो हमारी नॉर्मल रेंज है, हम इसको क्या कंपैरेटिव फिट इंडेक्स किस चीज़ के काम आता है, वी आर कंपेयरिंग द फिट ऑफ अ टारगेट मॉडल टू बी फिट इन द इंडिपेंडेंट मॉडल. हम ये देखते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टिव कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जो CFI है हमारा, वो हमें बताता है कि एक्सटेंड टू विच मॉडल ऑफ इंटरेस्ट इज बेटर देन द इंडिपेंडेंट मॉडल. तो CFI की जो हमारी रेंज होनी चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 0.7 to 0.9. राइट इट डाउन, राइट. And then we have to check GFI. GFI means goodness of fit index. Goodness of fit index. और GFI की वैल्यू it should be greater than 0.8. The GFI value should be greater than 0.8. Right? It is called goodness of fit. हाँ, goodness of fit statistics कहते हैं इसको. ये बताता है, ये कैलकुलेट करता है proportion of variance that is accounted for by the estimated population covariance. ठीक है, ये बताता है हमें रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड द रिप्रोड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑफ द ऑब्जर्व वेरिएबल. ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट, इसको हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट स्टैटिस्टिक्स. और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 होनी चाहिए. अगर उससे कम है तो ये माना जाएगा आपका मॉडल गुडनेस ऑफ फिट से बैडनेस ऑफ फिट है, आप गुडनेस ऑफ फिट में ठीक नहीं है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट इज आपका AGFI. AGFI की वैल्यू भी, AGFI की वैल्यू भी आपकी, AGFI का मतलब है एडजस्टेड गुडनेस ऑफ फिट. सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो मोर देन 0.7. 0.7. ठीक है, हाँ. देखिए नेक्स्ट देन NFI TLI की वैल्यू भी आपकी, NFI का मतलब है द नॉर्मल फिट इंडेक्स. नॉर्मल फिट इंडेक्स इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द chi स्क्वायर ऑफ नल मॉडल एंड द chi स्क्वायर ऑफ द टारगेट मॉडल. ठीक है, जो हमने नल और जो टारगेट मॉडल अपना बनाया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, उन दोनों के
डिफरेंस को बताता है। तो इसका जो NFI का जो रेट है, इट शुड ऑल्सो मोर देन 0.8। NFI भी आपका 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। TLI, NFI और AGFI ये सारे आपका किससे ज़्यादा होने चाहिए? रेंज बिटवीन आपके 0.7 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका CMIN/DF। ये आपका लाई करना चाहिए, इट लाई बिटवीन 2 to 5 इज फेवरेबल, बट इफ यू लाई बिटवीन 1 to 2 देन ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मतलब 2 से 5 के बीच में ये फेवरेबल माना जाता है। इसको कहते हैं हम रिलेटिव काई स्क्वायर। इसकी रेंज 2 से 5 के बीच में होनी चाहिए, है ना। 2 से 5 की रेंज हमें ये बताती है कि हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा फिट है और हम इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी वैल्यू है RMSEA। RMSEA का मतलब है रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। इसकी रेंज आपकी लेस देन 0.08 होनी चाहिए। दिस रेंज इज लेस देन 0.08। हेलो, इसकी रेंज 0.08 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इसकी रेंज 0.08 से ज़्यादा है, इट मीन्स योर मॉडल फिट इज़ नॉट वेरी गुड। अगर इसकी वैल्यू 0.9 या 10 या 11 आती है तो आप थोड़ा, अगर और चीज़ें आपकी सही आ रही हैं तो आप RMSEA को ले सकते हैं। इसकी रेंज 0.08 से कम है तो क्लोज फिट है, लेकिन अगर रेंज बिटवीन 0.05 टू 0.08 है, इट मीन्स एक्सेप्टेबल वैल्यू, ठीक है। और NFI अगर क्लोज वैल्यू है 0.90 तो गुड है मॉडल फिट आपका, ठीक है। और अगर आपका CMNI/DF, मतलब CMNI/DF का मतलब है काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2 है तो इट इंडिकेट्स गुड फिट, और इसकी रेंज होती है 1 to 5, या इसकी रेंज आप 2 to 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, EFA CFA मैंने आपको बता दिया। अब जब हम मल्टीपल रिग्रेशन, पाथ एनालिसिस, कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम SAM की बात करते हैं। बेसिकली SAM मॉडल क्या है, SAM मॉडल की क्या जरूरत है? SAM मॉडल बेसिकली क्या करता है? इट टेस्ट द रिलेशनशिप अमंग द 2 types of variables, the observer and the latent variables, to determine whether these associations are consistent with the obtained sample of data or not, ठीक है। और इसमें हम क्या चेक करते हैं, मैंने आपको बताया, ये SAM की फैमिली में क्या क्या आ जाता है? कोरिलेशन, कोवेरिएंस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, पाथ एनालिसिस और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काम करते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा की जब हम काम करते हैं तो हम मोर देन 2 कर रहे हैं, तो मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं, हम SAM की बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसे बहुत नामों से जान सकते हैं। हम इसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कह सकते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस भी कह सकते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस भी कह सकते हैं। आपको एक्सप्लोरेटरी, देयर आर 2 कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। देखिए 2 कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो है नहीं, कंफर्मेटरी और स्ट्रक्चर में 2। देखिए माय डियर, डोंट कंफ्यूज, वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर मॉडलिंग is a cause and effect relationship we are checking, and when we are measuring we are going for a confirmatory, that is
a brother and sister of factor. In the we are using the EFA and CFA. Like I am what pattern I identify, I am matching the pattern, I am confirming the pattern. It means I am using the measurement model. That is CFA. Got the point? ठीक है? But once the measurement model is depicted that how the observed variables represent the construct, a test of the accuracy of proposed measurement by assessing the relationship between the observed and the latent variables. So structure model हम use कर रहे हैं, SAM use कर रहे हैं, हम relationship बता रहे हैं the latent variables which allows testing the statistical hypothesis of the study. ठीक है? Got the point? Yes. Yes. Everybody got it or any confusion? और देखिए पाथ एनालिसिस हम जब एरो से डिपिक्ट करते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना कि वंस वी आर यूजिंग द पाथ, वंस वी आर यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एरोज लाइक अल्फा बीटा, दो मेजरमेंट होते हैं जो ए और बी के बीच में एक रिलेटेड थिंग्स, बोथ आर द सेम थिंग्स, नो माय डियर, they are different, they belongs to different family. Once we are talking about the factor analysis, once we are talking about the interdependent, once we are checking the interdependence among the variable, so we are going for the factor analysis. ठीक है? Once we are checking the group variables, we are going for the factor analysis. Once we are identifying the pattern, once we are making the pattern, once we are confirming the pattern, we are doing the confirmatory and exploratory factor analysis or cluster or talent analysis. These are the different families and these are the brother and sisters, exploratory and confirmatory. But SAM is different. SAM belongs to a different family. In SAM family, in structure equation modeling family, we take path analysis, we take multiple regression, we take bivariative correlation or correlation among the data, correlation among the variables. Got the point? Hello? Yes, ma'am. If any confusion is there, you can please ask me the question. If there is any confusion is there, I can solve it out. Otherwise, मैंने आपको बताया कि once we made the data, we have to check the internal consistency, we have to check the construct validity, we have to check the value for the majority of standardized regression weight. Once it is more than 0.70, we proceed the data. It means we are confirmed that our data set is good, our data set is valid, and we have to check the values also. Our model is also fit, our model is also standardized, and we can proceed further. हम इस पर आगे काम कर सकते हैं. तो हम देखिए जब हम एनालिसिस करते हैं, वंस वी आर एनालिसिस द मॉडल, जब हमने मॉडल फिट चेक कर लिया है तो हम इसको बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. वी कैन टेक द स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट, वी कैन टेक द स्टैंडर्डाइज्ड बीटा वैल्यू, वी कैन टेक द मीन वैल्यू ऑल्सो, वी कैन टेक द आर स्क्वायर वैल्यू ऑल्सो. ठीक है? वी कैन टेक द एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड ऑल्सो, वी कैन टेक द मैक्सिमम शेयर्ड वेरियंस ऑल्सो. मैक्सिमम शेयर्ड वेरियंस और AVE की वैल्यू मैंने आपको बताई थी. इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5. 0.5 AV जो है, जो एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड है, उसकी वैल्यू मॉडल की मोर देन 0.5 आनी चाहिए, तो हमारा मॉडल वैलिड माना जाएगा. और मैक्सिमम शेयर्ड वेरियंस की वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन AV होना चाहिए. जो हमारी मैक्सिमम फैक्टर स्ट्रक्चर, आई कैन प्रोसीड फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर. उस वेरिएबल ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स को आई कैन एडमायर, आई कैन टेक. राइट? Yes. हाँ. और देखिए CM, I and DF लाइज बिटवीन 2 to 5 फेवरेबल होता है. मैंने बताया
जब हम काई स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडल ऑफ फिट में 2 to 5 अगर उसकी रेंज आती है तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आवर डेटा सेट विल बी फेवरेबल, आवर मॉडल इज अ फेवरेबल। ठीक है, राइट। और देखिए इफ लाइक सपोज set of variables are there, in the set of variables I have to check the correlation matrix। तो देखिए correlation matrix should be more than 0.3, it should not more than 0.9। ये सब सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। once we are running the factor structure, once we are running the factor analysis, the correlation matrix of the variables, a set of variables should be more than 0.3 and not more than 0.9, राइट। यस मैम। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मल्टी क्लोनेटरी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड आपस में ना हो जाए सेट ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मल्टी क्लोनेटरी की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये माना जाएगा दो स्टेटमेंट्स आपके आइडेंटिकल है, एक समान है, इसका मतलब दो अलग अलग नहीं है। ठीक है, हाँ। और देखिए, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, नहीं कोरिलेटेड तो होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि दो चीज़ें एक समान आ जाए, दो चीज़ों की वैल्यू एक जैसी नहीं आनी चाहिए। दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं होना चाहिए, दोनों सेम। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और देखिए हम क्या करते हैं, once we are running our factor analysis, we are also defining a cut off rate। हम एक कट ऑफ रेट फिक्स कर लेते हैं और आजकल वो कट ऑफ रेट क्या है, इट शुड बी मोर देन 6, इट शुड बी मोर देन 0.6, वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। पहले 5 पे भी हम डेटा रन कर लेते थे, अब हमारा जो कट ऑफ रेट है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 0.6 होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा की हमारी जो वैल्यू आएंगी उसको हम लेंगे और उससे जो नीचे आएगा, जो 5 और 4 की मैट्रिक्स में आ रहा है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ हम फैक्ट एनालिसिस में एक चीज़ और चेक करते हैं कि आपस में क्रॉस लोडिंग नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में 2 बार आंसर आ रहा है सपोज, एक क्वेश्चन का 2 बार आंसर आ रहा है सपोज, तो जब भी हम आपस में क्रॉस लोडिंग करते हैं तो अगर आपस में डिफरेंस 0.2 से ज़्यादा डिफरेंस है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, और अगर उससे कम है तो हम उसको ले लेंगे। फैक्ट एनालिसिस मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं एक ओरिजिनल डेटा सेट को, तो हम कहते हैं कि फैक्टर जो है एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है। और ये जो बहुत सारे कंस्ट्रक्ट ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, डायरेक्टली हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, दैट नीड्स टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द इनपुट वेरिएबल्स। So we show the application in a regression analysis as the factors goes when we use the independent variables in the regression analysis help to solve the multi-clonatory problem। तो जब हम ऐसा रिग्रेशन मॉडल होता है जहाँ पे when the independent variables are so highly correlated, जो independent variables हैं वो भी आपस में बहुत ज़्यादा correlated है और हम दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि इन्फ्लुएंस किसका किस पर ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे ज़्यादा है या डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट पे ज़्यादा है। तो उस समय हम क्या करते हैं, मल्टीवेरिएटिव टेक्निक यूज़ करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा हमें यूज़ करते हैं हम फैक्ट एनालिसिस। गॉट द पॉइंट? Okay, so friends, today now it is clear कि what is the difference between the SAM and the factor analysis?
इट इज क्लियर टू एवरीबडी और देयर इज एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ तो हाँ वो ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि नाउ यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EFA, CFA एंड SAM? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? And in the CFA we have to use the casual research, right? Descriptive and the casual research. Okay. And what is the difference between then confirmatory and the SAM? हाँ वैलिड है कि नहीं है, हमारा जो कंस्ट्रक्ट है, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, जो हमने कंस्ट्रक्ट बनाया है, वो कंस्ट्रक्शन जो हमने एक हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, एक मजबूत हाइपोथेटिकल बैकग्राउंड हमने जो तैयार किया है, वो उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? ठीक है। हाँ वो जानने के लिए हम क्या करते हैं? कंफर्मेटरी फैक्ट एनालिसिस को रन करते हैं। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंफर्मेटरी एंड SAM? Anybody? What is the difference between confirmatory factor analysis and SAM? Anybody can try? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि मल्टीवेरिएटिव एनालिसिस मेथड्स हम यूज़ करते हैं। जब हम मल्टीवेरिएटिव एनालिसिस मेथड्स यूज़ करते हैं तो जनरली our multivariate analysis methods divided into two parts. One is based on the analysis of dependence and one is based on the analysis of interdependence. हाँ, so once we are talking about when one or more variables are dependent variables to be explained by predicted by others, or by multiple regression, or by SAM, or by path analysis, so we call it analysis of dependence. So you simply say कि SAM is structure equation modeling is based on the analysis of independence. Got the point? And it is a structured modeling equation. And once we are talking about the analysis of interdependence, no variables, we can't thought of a dependent. Look at the relationship among the variables, objects or cases like cluster, factor, ANOVA, t-test. ये सारे interdependence होते हैं। मतलब we think, we assume that all the independent, all the variables are interdependent of each other, right? जब हम ये देख लेते हैं कि सारे वेरिएबल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? फैक्ट एनालिसिस यूज करते हैं, अनोवा यूज करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो वी कॉल इट एनालिसिस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हाँ, तो बेसिकली वंस वी आर गोइंग फॉर द EFA, CFA एंड SAM, सो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे इसको बताओगे कि इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, यस,
देखिए लेट मी स्पीक देखिए, वंस आई एम विजुअली बाय विजुअलाइजेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, बाय पाथ एनालिसिस, बाय शोइंग पाथ, बाय डायग्राम्स आई एम रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, right? By showing arrows I am representing the relationship. In SAM we are using that, right? In structure equation modeling we are using that, but in confirmatory is a measurement model. We have to measuring the variables. We are measuring the variables, we are measuring the relationship among the variables. एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस के बीच में मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि कौन सा किस पर, आज डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है. और इस रिलेशनशिप में मैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मॉडल फिट के थ्रू, ठीक है, और मेजरमेंट के थ्रू कंफर्म कर रही हूँ मैं कि व्हाट डेटा सेट आई मेड इट इज राइट. गॉट द पॉइंट? देखिए अब next what are the softwares which are applicable in CFA and SAM? See, once we are checking the interdependence among the variables, so once I have to run the EFA, the SPSS, Stata and Jamovi, these are the very popular softwares now available in the market. Once you have to check the EFA, once you go through the EFA, अगर आपको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करनी है, सो यू कैन यूज SPSS सॉफ्टवेयर्स. अगर आपको मतलब सैम पर काम करना है या रिग्रेशन पे काम करना है, तो आपको रिग्रेशन तो SPSS से भी निकल जाता है, स्टैटा से भी निकल जाता है, जमोवी और एक्सेल का भी बहुत एडवांस वर्जन आ गया है. अब आप देखेंगे एक्सेल पे भी आप रिग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. रिग्रेशन इक्वेशन इजीली, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको सैम यूज़ करना है तो यू हैव टू गो फॉर अमॉस और आर या जमोवी आप ले लेंगे तो आपको सारा ही मिल जाएगा. ठीक है, गॉट द पॉइंट? हाँ, अब देखिए, अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको कि लाइक अगर फैक्टर एक्सरसाइज मेरे को करनी है तो मेरे को फैक्टर एनालिसिस में और क्या चीज़ चाहिए होती है, किस चीज़ पे बेस्ड होती है फैक्टर एनालिसिस टेक्निक? इट रिक्वायर्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा? फैक्टर एनालिसिस. In the factor analysis, what kind of data we require? No idea? Any what kind of data we require? Data should be either based on देखिए, once we generate a large number of statements, right, say as 100, 200, 500, whatever it is, it's a part of exploratory getting, but data should be metric. Data should be metric, yes. So factor analysis exercise requires metric data, or it should be either interval or ratio scale in nature, right? Like Likert, or like height and weight, age, marks, right? And the variables, how we gather the variables for the factor analysis? Through exploratory research, right? We gathered the variables through the factor analysis through exploratory research, and descriptive also we use by conducting focused discuss, or we can say that focus group interview, focus group discussion we call it, right? तो फैक्टर एनालिसिस हम क्या डेवलप करते हैं? मल्टीपल आइटम स्केल्स डेवलप करते हैं फॉर मेजरिंग वेरियर कॉन्टैक्ट. ठीक है, हमें सपोज हम कोई चीज़ मल्टीपल आइटम बनाना चाहते हैं किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, तो हमें उस स्केलिंग को वी वांट टू नाउ वी हैव वांट टू कंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर आइटम स्केल.
जैसे हमें मान लो किसी का जॉब सेटिस्फेक्शन मेज़र करना है या एटीट्यूड मेजरमेंट करना है, तो हमें उस आइटम स्केल को बनाना होगा मेज़र करने के लिए, ठीक है। हमें कुछ आइटम्स में फैक्टर्स को लेना होगा और उसकी फैक्टर लोडिंग निकालनी होगी, राइट। और हम उसमें एक आइटम स्केल को डेवलप करेंगे जो कि हमें मेज़र करेगा कि हम कौन सा मेजरमेंट एटीट्यूड या कौन सा जॉब सेटिस्फेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है जी। और बेसिकली हमेशा याद रखिएगा कि वॉट एवर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यू आर कैरिड आउट इन द फैक्टर एनालिसिस, it should be with the knowledgeable people and judgment of the researcher. Informal interviews, literature survey, analysis of case studies, all are comes in that particular issue. ये सारी चीज़ें आती है फैक्ट एनालिसिस में। बस शर्त ये है कि द वेरिएबल यूज इन द फैक्ट एनालिसिस आर स्टैंडर्डाइज्ड, बट ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये एक तो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए और आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। और एक पर्टिकुलर स्केलिंग पे बेस्ड होने चाहिए। स्केल आइटम से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होती है वेरिएबल्स की, उसको हमें पहले निकालना भी है, उसको चेक भी करना है और उसको हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करना है कि वेदर कोरिलेशन मैट्रिक्स इज इनसिग्निफिकेंट और वेदर कोरिलेशन मैट्रिक्स इज सिग्निफिकेंट। और फिर उसको हम वैल्यूज से जब कोरिलेट करेंगे तो हम देख लेंगे, हम बता सकेंगे कि ये हमारा जो हमने जो कोरिलेशन मैट्रिक्स हमारी आई है वो ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो हम एक्सेप्टेबल उसको रेंज में ले लेंगे और अगर गलत है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमें किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करनी है। लाइक सपोज मेरी किसी पर्टिकुलर शॉप से बहुत अच्छी फीलिंग है इन क्वालिटी वाइज, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि वहाँ की क्वालिटी मुझे अपील करती है, इसलिए मैं बहुत लॉयल हूँ। तो सपोज आई एम टेकिंग लाइक 500 पीपल, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर शॉप। So, and I am interviewed those people and asked to respond the following based on the following Likert scale. Suppose 7-point Likert scale में यूज़ कर रही हूँ, तो इससे रिलेटेड मुझे स्टेटमेंट्स लॉयल्टी से रिलेटेड मेरे को और क्वालिटी से रिलेटेड, क्योंकि क्या चेक कर रही हूँ मैं, एक तो क्वालिटी ऑफ द शॉप और एक लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर। सपोज आई एम द कस्टमर, तो मैं क्या चेक कर रही हूँ, एक तो लॉयल्टी, और लॉयल्टी बनी क्यों, क्योंकि वो क्वालिटी दे रहा है, ठीक है। तो एक तो क्वालिटी, एक क्वालिटी और एक लॉयल्टी। तो मतलब आप ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, बेसिकली वॉट एवर यू आर फ्रेमिंग द स्टेटमेंट्स, वॉट एवर स्टेटमेंट्स यू आर फ्रेमिंग और वॉट एवर क्वेश्चंस यू आर बिल्डिंग अप, इट शुड बी कोरिलेटेड विद दोज फैक्टर्स। वो क्वालिटी और लॉयल्टी से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब आप जो भी कनेक्शन बना रहे हैं, वॉट एवर कनेक्शन यू आर मेकिंग, so it should be related either your experiences or maybe either your memories or maybe whatever, like loyalty, or you are recommending that particular place, or you are going according to your way because you are very a quality conscious person. Whatever questions you are making, it should be correlated to the loyalty as well as quality, right? That is also a basic condition of the factor analysis. ठीक है। हाँ, और इसमें आपको दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए कि हाउ मेनी फैक्टर्स एग्जिस्टिंग अमंग अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। लाइक सपोज 100 वेरिएबल्स यू हैव टेकन, 100 क्वेश्चंस you have taken. So how many factors are existing between the set of variables? Suppose 5 factors existing, or 10 factors existing, or suppose 6 factors existing. So you must aware about that how many factors are existing among a set of variables, and what variables are related to or loading on which factors. कौन सी लोडिंग किस पे ज़्यादा है, कौन सी फैक्टर लोडिंग ज़्यादा है, कौन सी फैक्टर लोडिंग कम है, और क्रॉस लोडिंग तो नहीं है, क्रॉस लोडिंग तो नहीं आ रही है. ठीक है, गॉट द पॉइंट. ठीक है, तो these basically once we are going, again I am repeating, once we are going for the factor analysis, we take the factors, usually the latent constructs,
or like attitude, satisfaction, or any kind of social index, or any kind of quality or happiness, which can't be easily indirectly these are measurable, or we call it latent constructs. ठीक है, तो इसको एग्जामिन करने के लिए तो बेस्ट अप्रोच इज फैक्ट एनालिसिस। सबसे बढ़िया अप्रोच जो है वो फैक्ट एनालिसिस ही होती है। तो देखिए, इन सॉफ्टवेयर्स के आप नाम भी लिख लीजिए, और इन सॉफ्टवेयर्स को आप अपने लैपटॉप में अपडेट भी करा लीजिए। ठीक है, प्रीति, यू हैव अ अपडेट वर्जन ऑफ EFA, दिस वन SPSS और AMOS you have in your laptop? Ma'am, no, only SPSS. Only SPSS you have. So in the SPSS you can only go through the unstructured analysis. तो आप ये फिर रन कर सकते हैं बस SPSS में, या एक्सेल आपके पास है तो फिर एक्सेल से भी आप वही रिग्रेशन पार्ट कर सकते हैं। But if you go for a confirmatory measurement, once you are going to examine the measurement model, then you have to go for AMOS or R और Jamovi। R में सारे वर्जन्स आ जाएंगे। तो आजकल Jamovi बहुत, आपको R आता है, R रन करना आता है, R you are aware? Deepak, Nisha, you people have the softwares in your laptop? No reply I am getting from your side. I am asking you people. हाँ, दीपक जी, आपके पास you have these softwares? So if you go through these particular data, how can you run your analysis once you don't have the software? हाँ, आप इंस्टॉल करा लीजिए। अगर आप ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, आप सिर्फ जो है मतलब CFA और SAM और इसमें EFA पे काम करना चाहते हैं, फैक्ट एनालिसिस और SAM में, यू जस्ट गो थ्रू SPSS का 24.0 वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, और ये आप करा लीजिए, ये AMOS करा लीजिए, AMOS और SPSS। अगर ये दोनों भी आप करा लेंगे, और एक्सेल तो आपके पास हो गई, एक्सेल तो सभी के पास होता है, और एक्सेल में भी ना आजकल आप जाएंगे तो एडवांस वर्जन है, कुछ एक्सेल की एडवांस वर्जन है, आप वो भी डलवाना चाहें तो अपने लैपटॉप में एडवांस एक्सेल भी आप डलवा सकते हैं। ठीक है, अगर if you have in your software, then I am giving you the steps one by one. How can you open the software, what are the steps one by one, I am briefing you. मैं लैपटॉप से आपको बताती चलूँगी स्टेप बाय स्टेप कि you go for accordingly, and then you have to check these variables, how can you feed the data one by one. I can tell you, and with the in my class you can easily proceed these softwares, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट एटलीस्ट आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि once we go for a factor analysis, once we go for a SAM analysis और path analysis, path तो सारा visual presentation है। Once we are talking about the SAM ना, structure equation modeling, it is based on the visual presentation only। सारा arrows, aerodrome का ग्रीम है, सारा arrows का है। Telling me that she has, and Preeti only have only SPSS, not AMOS। So or I can give you the steps how can you, or I can give you the steps how can you run it, Preeti, I am not getting you, what you are saying। हाँ जी, हाँ बोले। एमॉस और करा लें आप, तो आपका एमॉस और SPSS दोनों हो जाएंगे, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। एक्सेल है आपके पास, एक्सेल तो होगा आपके पास, एक्सेल, यू हैव एक्सेल ऑल्सो। एक्सेल है, यस मैम, है, और लेटेस्ट है एक्चुअली
अच्छा, तो ठीक है, आप रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं उसमें एक्सेल के थ्रू, और SPSS के थ्रू आप EFA और AMOS के थ्रू आप CFA कर सकते हैं. देखिए, इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी डू इज वी विल गो फॉर द स्टेप्स. Like I'll tell you a question, I'll give you some questions, you feed data accordingly, and just I'll give you how you run that particular software. ठीक है, I give you the steps, you can run and get it the result, and then you give me the result, and then you can check the result by the values. Then only you can know that your data processing is right or not. You are reaching in the right conclusion, you are examining the right direction, you are going in the right direction or not. Got the point? Yes, ma'am. Okay. So now it is very crystal clear, I think so, कि in the factor analysis is firstly a data reduction technique, and it easily simplify when we are having a very complex data. It is easily simplifies our complex data, and it is very helpful in our decision making, right? And when we have a huge data, it is a multivariate statistical technique in which when there is no distinction between the dependent and independent variables, and when this data is very huge, so we run the factor analysis. Once all the variables under the investigation or under the analysis. So what are the latent variables, what are the observed variables, what are the difference between these, what are the complex which are not manageable, what are manageable, what kind of what kind of factors explain most of the variance in the original data. So the answer is factor analysis. So that's why we are saying factor analysis is a linear combination of the variable. It's a linear combination of the variables, and it is a construct that is not directly observable, but that needs to be in front from the input variables. Input variables से हमें ये पता लग जाता है कि किसके साथ इंटरडिपेंडेंस है, कौन किस पे कितना लोडेड है, कौन किस पे कम लोडेड है, किसकी क्रॉस लोडिंग आ रही है, कौन सा आउटकम वेरिएबल है, कौन सा प्रेडिक्टिव वेरिएबल है. वी कैन इजीली गेट दी आंसर, राइट? So I am asking to both of you, not only Deepak, Preeti, Neha, these people are giving me the reply only, not more than other people. Why you have no confusion? Everything is very crystal clear to you people? Are you getting my voice? Yes, ma'am. Other people are not replying. So basically you do one thing, you have to collect, you could take some constructs, you define some, you should collect some particular data, and you should define some drivers, you should define some practices, you define some outcomes. इस तरीके का आप एक मॉडल बना लीजिए, एक बेस बना लीजिए, and then you send me that particular model. आप वो मॉडल मेरे को सेंड कीजिए कि मैम मैंने ये मॉडल बनाया है. Neha, Preeti, Deepak, other people, you listen carefully. You make that particular model with the help of the drivers or help of the mediator or help of the outcomes. You make that particular model, fill your data and send it to me in my email or WhatsApp, right? I'll tell you कि whatever model you make or whatever you are making, that is okay or not, right? And if it is okay, then we can go through the software and we can get the conclusion from that, right? I think it is good exercise. So tomorrow what I do is I tell you कि how can how many means, like what is the role of the R square, है ना? What is the role of the standardized weight? What is the role of the unstandardized regression weight? What is the role of the p-value, and what is the role of the critical value, and what is the role of the mean value,
right? And what is the role of the descriptive statistics? How can we justify or interpret our result, whatever model we make? How can we interpret if my model is fit, if my model is accurate? How can I interpret the result? By using descriptive statistics, in which we are taking the standard deviation and the mean value. How can we take the standardized and unstandardized regression weight? How can we take the R-square meaning? How can we take the exogenous and endogenous? How can we take the model fit indices? How can we take the validity and reliability point of view? These all contents. I can take a question tomorrow. We can take an example, and in that example first we solve that particular problem with the help of EFA and CFA and the SAM, of course, and with the help of that then I can solve that answer, and I'll tell you the interpretation parameter also, ki how can we interpret the results by using the descriptive statistics, by using the regression model, and by using the by SAM and the confirmatory, right? So मैं कल स्लाइड्स बना लेती हूँ आज, और कल हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे.